food. The other thing is they stopped looking at them as income generation vegetables. For example, आप देखोगे, at least I am in Mumbai. Though in Mumbai I have an example of an urban forest here, a sort of an urban food forest where I grow. I'll just first show that I've brought a lot of these herbs and a few wild edibles from my own urban forest garden. So now the farmer, उसके फील्ड पे जाएंगे ना, वो completely for वो it's denuded of whatever wild weeds that are growing. They don't look at them as if they have to come and sell, for example, spinach and methi and other vegetables. We need to re-educate both our urban public and our farmers that all these wild edibles are very healthy for us, and there needs to be a complete marketing platform where they can be sold to. Okay, so this is just one point. First of all, I'll just come into a few of the wild edibles that I'm talking about. So for example, and also I'll just mention that in the kitchen gardens, in the kitchen gardening courses that we teach here, so often people will ask that they grow their vegetables in pots or in small balconies or in a small patch of land out. And like mulching is important, an important part of natural farming, which we tell them. But another aspect is green mulch. So green mulch here, I mean is that leaving on some of the wild edibles in the pots that you grow. Now what I mean to say is that both in the urban, your kitchen gardens and in the fields, either we can make, like we advise farmers to grow, particularly grow, they keep weeding out these wild edibles. Some of it should be left on because it's not harmful. There's a very popular model these days of wild farming. I think some of the people here can talk about it. They are actually doing it. So some of the examples that I'm telling you is that, for example, this is a wood sorrel plant. इसको हम लोग ये बोलते हैं, it's a kind of ambat in Maharashtra they will call it. अब I would say यहाँ पे it's not only that it doesn't get sold, people, even the kitchen gardeners, spend a lot of time weeding it out from their pots, and the farmer spends a lot of time weeding it out from the fields. So I'm first coming one by one to what can be grown both in kitchen gardens and in fields, and these are useful to make chutneys and vegetables. And so, okay, see, there is, for people who know about it, there is an argument. Now these wild edibles, many of them are rich in oxalates, yes. So thoda sa excess of it, oxalic acid and oxalates, without cooking, may be harmful. Jaise, many people raise this question in our training programs. So the point here is that you're not going to be eating a whole lot of it, no? A small quantity is what is consumed normally. And that is very much ideal. In fact, it's a very powerful detox, not only to the system, it's a detox to your soil, it's a detox to the air around you, and for the farmer, it's a detox to the and a nutrient fixer to his farm. Okay? So now I'll come again. First I'll itemize a few of the plants which I've got here, which are growing in my own garden here. And so this is we call it insulin plant. It's a Costus family. So there are many kinds, but this one is very khatta hai. Jaise ki the farmers have a lot of another plant which I don't have here, which is called ambadi.
So Ambadi grows wild in their fields very often, also called roselle. Now बाहर में गई थी, you know, for example, I went to Thailand once. वहाँ पे the minute in the high-end hospitality hotels, the first thing they greet you with is a roselle flower tea. Now that's very healthy for you. यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करता. यहाँ पे रोजेल जो है, इट इज़ नॉट नॉर्मली सोल्ड. द फार्मर विल वेरी ऑफन नॉट नो कि जो रोजेल प्लांट उसके फील्ड में आ रहा है, तो उससे भी वो इनकम जनरेशन कर सकता है. ही कैन सेल इट. या सो दैट इज जस्ट इन आई इंटरप्टेड विद दैट. So this one can be put in chutneys. It can be used for diabetes. So I'm not going to go into details of how to use. Whoever wants to know details can contact us. We are all, even Gauri is a specialist in that. She'll be coming in later. So we are many of us here who know, who can advise people how to use these wild edibles, and they can get in touch with anybody later. So the next one which I am talking about is first let me cover the sour plants. This is like your इमली का पत्ता. So इमली का जो पेड़ है, it grows wild in most farms, and it very often grows wild around in societies and many places. Now in South India, most people will know इमली का जो पत्ते का चटनी is served in most of the South Indian restaurants. अब यहाँ पे हम नॉर्थ इंडिया में हम भूल जाते हैं इसको यूज़ करने, या इन सेंट्रल इंडिया. So just giving an example again of income generation usage of this. अच्छा, ये मकोई है. Now मकोई again इसके बेरीज हैं. ये इसका साउथ इंडिया में सांबर में डलता है, इसका सब्जी बिकता है. यहाँ पर मैंने कहीं नहीं देखा. Right from central India to North India. And this very often grows very, very wild in the fields, in your pots. So again, I am just highlighting some of the plants which we have forgotten and which we need to revive. So now the next one here is, this is bhui. See, they are being used by the Ayurveda industry. Now bhui amlaki, called also Philanthus neruri, ये हमारे गमलों में भी बहुत आता है. ये हमारे साइडवॉक्स में आता है. अच्छा, साइडवॉक से नहीं लेना. I just want to mention that ये तो है कि if you don't pick your wild edibles from a field, for example, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डाला है. I am talking about natural kitchen gardens and natural farming fields. Okay? Plus ऐसे wild patches जहाँ पे कोई आके कंटिन्यूसली वहाँ पे कोई स्प्रे नहीं कर रहा है पेस्टिसाइड. सो दैट इज एन अंडरस्टूड थिंग, आई होप. सो इसीलिए आई जस्ट क्लैरिफाइड इन केस टुमारो पीपल विल से दैट लिवर के लिए बहुत अच्छा. हाँ, सो दिस इज एक्सीलेंट फॉर लिवर. आई हैव ट्राइड इट आउट ऑन मेनी पीपल. यू नो, इट एक्चुअली रिवाइव्स लिवर सिरोसिस. इसको खाएंगे तो. नाउ दिस इज मेटिकुलसली वीडेड आउट both from kitchen gardeners and the farmers. ये थोड़ा सा, सॉरी, मैंने ये एक्चुअली मेरे पास, वी कैन यू कैन गूगल इट एंड सी इट. मैं तो सिर्फ अपने पॉट से लाई थी. इट लुक्स लाइक दिस. हाँ, अच्छा, लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिकॉज टाइम विल शॉर्ट. सो हियर दिस इज अनदर वाइल्ड. सी, इसका आई एम फॉरगेटिंग द नेम. दिस grows wild all in across south. इसका एक कटिंग लगा देंगे तो बहुत हो जाता है. So there are plants again like these, again wild plants used in chutneys, in vegetables, in many other ways. अच्छा, then wild amaranth. Amaranth वो जैसे हम लोग राजगिरा खाते हैं ना, तो wild वो चौलाई बोलते हैं, चौलाई की सब्जी. ये तो इतना आती है हर जगह, इतना आती है. मैंने देखा इसको लोग खाना ही भूल गए हैं. ये इतनी हेल्दी है और इसको उगने दो तो इसमें से जो वो बीज आते हैं ना, उसको आप चपाती में डाल के खा लो. वो ही है, राजगिरा ही है, वो क्या बोलते हैं उसको, रामदाना. ठीक है.
This is another one I mentioned. Acha, now I'll jump on straight to a few herbs which also need to be planted both by farmers and in our kitchen garden pots. Now this, ये अडूसा हमें सब पता है, वासा. Now ये हमारी खांसी के लिए बहुत अच्छा है. हमने तो कभी बचपन से ना कभी नहीं, मैंने कोई कफ सिरप या हमने नहीं खाया. तुलसी और अडूसा जो है, इससे हम लोग वो थोड़ा सा काढ़ा बनाए, कोई भी खांसी चली जाती है. पान का पत्ता मिला लें, थोड़ा अजवाइन मिला लें. इनफैक्ट तुलसी के लिए एवरीवन नोज तुलसी वेरी कॉमनली. मेरे को एक और सजेशन थी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हर्ब्स एज यूसेज ऑफ फूड. पेस्टो हम लोग यहाँ पे, हमारी अर्बन पब्लिक इतना महंगा महंगा पेस्टो खरीदती है मार्केट से, इम्पोर्टेड पेस्टोज. तो आप ये हमारी जो नॉर्मल हम्बल तुलसी है, इससे आप लोग बना सकते हैं. ओके, सो दैट इज अनदर थिंग. now I'll just finish. Is my time over? I don't know. One moment. हाँ, वन मोर. अच्छा, तो अभी मैं ये गिलोय और अडूसा का एक और बता रही हूँ कि इसमें हम लोग देखो, नॉर्थ इंडिया में मैंने बहुत देखा है, हिमाचल वगैरह में बाड़ियों, खेत की बाड़ियों में लगाते हैं अडूसा. यहाँ पे बहुत से फार्मर्स ये भूल गए हैं. दिस इज एन एंटी फंगल प्लांट, और इसी से फिर हम बहुत इजीली नेचुरल फार्मिंग भी कर लेते हैं. इट प्योरिफाइज द एयर इफ यू ग्रो इट अराउंड इन योर किचन गार्डन ऑल्सो, बिसाइड जनरल यूसेज. एक मैं ये गिलोय, हमारे यहाँ बहुत उगी हुई है. गिलोय का आजकल सबको पता है, बहुत सब लोग टाउट कर रहे हैं. इसमें फ्रेश शूट्स भी आते हैं. अगर आप अपने थोड़े से जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं ना, उस पे भी गिलोय चढ़ने दें तो आपके ये बहुत काम आएगी. ठीक है, तो नाउ वेल, आई होप आई हैव बीन एबल टू इंट्रोड्यूस some of the wild edible plants for kitchen gardens. This is part of our training. So we are all available here. We are natural farming and natural kitchen garden trainers. Naturopath. तो हाँ, We're naturopath. plus a naturopath, and we all include this knowledge in our training. So that is another sharing that we are I'm giving you. So and we would just like Thank you people say, so much, Puramji. Thanks. Hi, Ruchi ji. You can start now. Yeah. So I'm the founder of Taru Naturals. Thank you for inviting us, and thank you for the session. So Taru means tree. I'll just briefly introduce myself. Taru means tree in Sanskrit, and it's a network of small-scale farmers across India. We work across 12 states, and we have a network of 10,000 plus farmers, and we work on a three-pronged strategy. और उसमें क्या है, हम लोग पहले एक ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स ग्रुप को ट्रेनिंग देते हैं. हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा 3 डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है. तो उसमें नेचुरल फार्मिंग कवर करते हैं, उसमें रिटेल, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, किचन गार्डन, ऐसी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं. तो काफ़ी उसमें जो सप्लाई चेन, रिटेल, लॉजिस्टिक्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब स्मॉल स्केल फार्मर्स के साथ काम करते हैं तो और मैं इंग्लिश और हिंदी में बात करूंगी मिक्स करके, ताकि सो एसेंशली ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज अगर आप देखोगे हमें प्रोडक्ट तैयार करना है, हाँ, तो प्रोडक्ट अगर हमें मार्केट तक ले जाना है तो हमें ना होलिस्टिक ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है. तो जब स्मॉल स्केल फार्मर्स को हैंड होल्ड करते हैं स्क्रैच से, और कोई अगर ग्रुप्स ऑलरेडी हैं तो उनको ट्रेनिंग के साथ मतलब पूरा एंड तक, वैल्यू चेन तक, एंड तक लेके हमारा एंड टू एंड वैल्यू चेन पे इंटरवेंशन रहता है. तो अभी देखेंगे 12 स्टेट्स में जैसे हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं फार्मर्स के, जैगरी, ये हल्दी हो गई और ब्लैक राइस, ऐसी चीज़ें. और उत्तराखंड में काफ़ी काम हो रहा है अभी, उस वहाँ से काफ़ी खरीद रहे हैं.
महाराष्ट्र से तो खरीद ही रहे हैं, मिलेट्स और पल्सेस और ये जैगरी, हल्दी, काफ़ी चीज़ें खरीद ही रहे हैं। तो 12 स्टेट्स में मतलब बहुत बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। हम लोग एयरलूम व्हीट वैरायटीज़ पे भी काम कर रहे हैं, तो इंडिजिनस व्हीट वैरायटीज़ भी खरीदते हैं मध्य प्रदेश से, स्पाइसेस खरीदते हैं। तो ये ऐसे ये हमारा ब्रांड तरु ब्रांड करके है, तरु ऑर्गेनिक का एक ब्रांड है। और हम लोग अभी रिटेल में दे रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में ई कॉमर्स पोर्टल है, और इंस्टीट्यूशनल बल्क बाइंग में हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर हम लोग एक फार्मर ग्रुप के साथ काम करते हैं तो उसका सारा परचेज, उसका सारा प्रोड्यूस ले लेते हैं, तो जैसे B2B में काफ़ी अच्छा रहता है हमारा। तो एक तो वो है। सो एसेंशली इट्स बीन अ रियली इंटरेस्टिंग जर्नी, बिकॉज जब मैंने शुरू किया तो एक प्रोडक्ट के साथ, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ ब्लैक राइस, तो ब्लैक राइस का हमारा फर्स्ट एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया था 500 किलोस का, तो उसको हमें 3 महीने लग गए भेजने में। मतलब कोई और वेंडर था जिसे भेजना था। तो इशू क्या आया कि उस टाइम जब हमने काम शुरू किया उस पर 4 साल पहले, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और क्वालिटी ऐसी थी कि उसमें प्रोसेसिंग में भी, तो उसमें वाइट राइस बहुत स्पेक्स थे। और अभी भी बहुत फ़ोन आते हैं मुझे, जैसे राइस वेंडर्स के, बहुत सारे फार्मर्स के फ़ोन आते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, पर क्वालिटी ट्रेनिंग और जैसे सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, ये सब पे बहुत ही फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक घंटे के लिए 1 टन की मशीन तो है, पर जैसे अपने छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, उनके लिए जो छोटे छोटे मशीन्स हैं वो अभी भी हमारे जैसे IITs और ये एग्री यूनिवर्सिटीज़ के कबर्ड्स में ही हैं, और काफ़ी रिसर्च पेपर्स में ही है। तो ये जो मार्केट पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है फर्स्ट हमारी टेक्नोलॉजी में, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जिस्टिंग नहीं है, पर उनको हम लोग स्मॉल स्केल फार्मर्स तक कैसे पहुंचाया जाए, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज है नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो ऐसे बहुत सारे फेमस फार्मर्स हैं जो कहते हैं कि जैसा प्रोडक्ट है फार्मर का, मतलब उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, तो कस्टमर्स को खरीदनी ही चाहिए। हाँ, कस्टमर्स हैं ऐसे, पर आप ये सोचिए कि जो हमारे मार्केट में जो कस्टमर्स है वो ऑलरेडी क्या कहते हैं 50 to 100 ईयर्स का जो हमारा केमिकल फार्मिंग का बिजनेस मॉडल है ना, जिसमें ग्रोइंग से लेके हाइब्रिड सीड से लेके मार्केटिंग का जो ये इंटायर ग्रीन रेवोल्यूशन और ये पूरी MNC से रचा हुआ बिजनेस मॉडल है, उसकी उनकी आदत पड़ गई है। तो अगर उसको ब्रेक करना है तो हमें एक मिडिल पाथ लेना पड़ेगा, जिसमें हम न्यूट्रिशन पे भी फोकस करें, नेचुरल फार्मिंग पे भी फोकस करें, और हमें मार्केट फ्रेंडली, मार्केट रेडी प्रोडक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम इस विषय में हमने तरु नेचुरल्स में बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत R&D की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है बेसिकली। तो यही मैं कहना चाहूंगी। तो जैसे हमने ब्लैक राइस पे काम किया, तो उसका पूरे प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, फार्मर के साथ बैठा, कैसे स्टोन्स निकालते हैं, कैसे कट राइस को अलग करना है, मतलब स्मॉल स्केल तरीके से, ये सब बैठ के ग्रुप्स के साथ सॉर्ट आउट किया, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, फिर सप्लाई चेन। पहले क्या होता था, बोलेरो पे डाल के, फिर दूसरे कार पे डाल के, बस पे जाके, फिर हमारे यहाँ पे आता। तो मैं खुद कभी कभी रात को जाके वेयर हाउस में अपनी गाड़ी में लेके वापस आती थी। तो ये बहुत ही ये डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रोकन सप्लाई चेन थी, तो उसको फिक्स करने में, उसका सिस्टम बनाने में हमने बहुत कुछ काम किया। तो ये तो एक ही एग्जाम्पल है। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया जैसे टर्मरिक, हम लोग खरीद रहे हैं अभी टर्मरिक सतारा से, डॉक्टर साड़ुंके से खरीद रहे हैं। तो उसको मार्केट फ्रेंडली, अभी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सारा क्रॉप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो शुरू में हमें क्या फीडबैक आता था कि वो जो टर्मरिक है बिटर है, मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल टेस्ट था पर स्लाइटली बिटर था। तो क्यों था वो? तो हमने थोड़ा प्रोसेसिंग को उसको ट्वीक किया, उसको थोड़ा चेंज किया, लैब टेस्ट कराए, उसके कर्क्यूमेन वैल्यू का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करा कि अगर
टर्मरिक, अगर आप हल्दी को ग्राउंड में 8 या 9 महीने रखोगे तो ऑटोमेटिकली उसका कर्क्यूमिन लेवल बढ़ जाएगा, यू नो. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स टू एक्चुअली गेट योर प्रोडक्ट फ्रॉम द फील्ड टू अ मार्केट, टू अ ग्लोबल मार्केट. तो ये इसको मतलब फिर ट्रेनिंग की जरूरत है और मेनली पेशेंस और परसिस्टेंस की जरूरत है कि अगर आप एक स्मॉल स्केल फार्मर के ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, वो भी इक्वली कमिटमेंट के साथ तुम्हारे साथ काम करें. तो ये मतलब जैसे हम लोग एक अगर अभी डॉक्टर फुले के साथ अभी काम शुरू, वो अभी आए हैं, उनके विषय में बताऊंगी कि वो बहुत सपोर्टिव हैं. और हमारे जितने भी जैसे महाराष्ट्र में हमने ट्रेनिंग्स कराए हैं, तो डॉक्टर फुले बहुत सारे नेचुरल फार्मिंग ट्रेनिंग्स लेते हैं. तो उनका भी बहुत ही सक्सेसफुल एक वेजिटेबल का एक मॉडल है, वो खुद ही बात करेंगे. पर अभी हम लोग ने उनके साथ शुरू किया है. तो मतलब एंड टू एंड वैल्यू चेन टिल द मार्केट, ये ग्रुप के साथ काम करना, यही विषय में सबसे बेस्ट रहता है. तो अभी मैं उत्तराखंड के बारे में बात करूंगी. हमने एक आर्ट ऑफ लिविंग के साथ हम लोग मैं भी एक श्री नेचुरल फार्मिंग टीचर हूँ. तो उत्तराखंड में हमने एक हिमालय उन्नति मिशन शुरू करा है जिसमें 200 पार्टनर्स हैं. एंड उसी विषय में मैं अभी उत्तराखंड गई थी नेचुरल फार्मिंग ट्रेनिंग्स लेने के लिए. और हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे हैं उत्तराखंड से, राजमा, भट्ट, चौलाई का आटा, बहुत कुछ ले रहे हैं. तो उसमें भी हमें शुरू में बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि उसमें कंकड़ हो गए और भूसा हो गया, ऐसी चीजें मिलती थी. और मेनली क्या प्रॉब्लम है उत्तराखंड में कि चीर के पेड़ बहुत है, पाइन ट्रीज बहुत हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट द लीव्स ऑफ पाइन which are there which fall on the forest floor, they make the soil very acidic, and when the rain falls it completely just flows away. So because of that the ground level soil of the forest is extremely acidic. और फिर क्या होता है, फॉरेस्ट फायर्स बहुत हो जाते हैं. तो उसमें हमने एक फॉरेस्ट रीजेनरेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है इसके साथ साथ में, और एग्रो फॉरेस्ट्री पे बहुत फोकस कर रहे हैं इसके साथ साथ. तो ये बहुत ज़रूरी है. नेचुरल फार्मिंग के साथ में हमें ये भी देखना है कि ट्रेनिंग करते वक्त हम लोग कुछ फ्रूट ट्रीज लगाएं, कुछ ऐसे वेजिटेबल ट्रीज का भी कॉन्सेप्ट है आजकल बहुत शुरू हुआ है, जैसे टमेटो ट्री, ब्रिंजॉल ट्री. तो ये ऐसी चीज़ें ट्रेनिंग्स में इंक्लूड करें. तो ये सब हमने शुरू किया है एग्रो फॉरेस्ट्री का. एंड अभी मैं इस विषय में बताना चाहूँगी, जैसे अभी आजकल फार्मर पॉलिसीज और लॉज का बहुत इशू चल रहा है. तो जैसे फार्मर्स को अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर भी रहे हैं तो हमें एंड टू एंड सप्लाई चेन के लिए लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स ढूंढने के लिए बहुत काम किया है इस पे. तो फॉर एग्जांपल